such an august gathering today with all the best of people from the industry. And we are extremely glad that DFU for the first time with Association of CAMI that we are coming up with this webinar, which is Inventory Badhao, Cash Flow Banao. Perhaps nobody could have ever thought of this situation. Everyone, every company, and perhaps every business is facing a unique and individual situation, except one thing in common everywhere in the world, and that is uncertainty. Through basic brainstorming, we could easily identify that perhaps inventory is the most common pain point, be it a manufacturer, a distributor, a wholesaler, or a retailer. Inventory, because it is the key to build cash flow. Government support or bank support or resources through private loans and finances, whatever. But first thing everyone would be bothered about is to clear inventory. Where will we park our inventories? Well, I guess my job is easy. I have only questions to ask, and we have very seasoned and experienced panel to address the problems and suggest possible solutions. We have industry experts who are highly competent to share their views on all the points, but as per the format of the webinar, we requested them to focus on one of the sectors individually. While we know that we've got to liquidate about 30 or 40% of our inventory before we get into September, the only submission is we've got to be a little careful on not using deep discounting over a wide spectrum of products. Though it is going to be a challenge because you're not going to get the same amount of consumers coming to your stores last year, if you were to compare. And during end of season sale, typically you liquidate about 25-30% of your inventory. But this calls for actually looking at creative solutions instead of just getting into deep discounting. So I say deep discounting basically when it is higher than the normal discounts. So when you learn to make deep discount, you just teach yourself how to fail yourself. See, deep discounting basically diminishes your brand image. It diminishes your brand value. At the same time, your MRPs become meaningless to the consumers. They're not able to understand the value of the product. And ultimately, it ruins your bottom line. Discounting never attracts the customer. Good product does attract the customer. So we should see how we can restrain the discounting. At the same time, we can give value to the consumers. 60 marks to the merchandise planning. And merchandise planning comes with the experience. You have to see 3-4 seasons. You need to study the location, what kind of categories moving, what kind of size and colors and everything. Then only you come to know about the merchandise planning. Then I would give 10 marks to supply chain management. That is, the material should reach on time. The repeat sales, also the initial supplies. Then 30% balance, I think depends on the store, SOPs and store staff. Staff is a very important element in the store. See, as far as inventory is concerned, for me, it is a cash. It's a cash lying in your stores. So you have to convert that inventory to cash to pay your bills, to pay everything. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए हमें डिप डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है, क्यों आने वाले टाइम में प्रोडक्शन स्लो होगा। और अभी जो समर 20 की हमने जो मर्चेंडाइजिंग अब तक तो हमारी पूरी तरह से पहुंची भी नहीं है, और जो पहुंची है उसने कस्टमर ने देखी भी नहीं है, तो हमें वो मर्चेंडाइजिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। पीछे से प्रोडक्शन आना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लेबर इस बार है ना माइग्रेट हुए हैं, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन 100% आना नहीं है। और ऐसा है कि हमें बहुत पैनिक मोड में आके हमें कोई भी डेस्परेट डिसीजन नहीं लेने हैं। मैं इंडस्ट्रीज में सबके कैसा है कि इंडस्ट्रीज में सबको मिलजुल के काम करना होगा, जहां रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि आप है ना अपने डिस्काउंटिंग को रोकिए। आज की तारीख में हो क्या रहा है, हम टर्नओवर के चक्कर में हम प्रॉफिट पे को हिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बन नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट सब सारे इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे और एक थ्योरी पे आना पड़ेगा कि हम अपनी डिस्काउंटिंग कैसे घटाएं। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्रोडक्ट
होना चाहिए। आज क्या होता है, हम प्राइस इन्फ्लेट करते हैं बिकॉज हमें पता नहीं हमारा वैल्यू लॉस क्या होगा, तो हमें प्राइस इन्फ्लेट करनी पड़ती है। बेटर है हम अच्छे प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में बेचें, कस्टमर तक सर्विसेज अच्छी दें और हमारे अपने डिस्काउंटिंग को कम करें। अच्छा, डिस्काउंटिंग में भी डायरेक्ट डिस्काउंट की जगह मेरा ये अपना ओपिनियन है कि हम अपने इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए हम और कोई आइडिया सोचें। जैसे कि सपोज मैं अगर कोई मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं देने के बजाय मैं ये बताता हूँ कि भाई 3000 की मर्चेंडाइज खरीद लो, आप 3000 की मर्चेंडाइज फ्री कर लो, या 1000 की, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंड ऑन द ब्रांड। तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा क्लियर होंगे, हमारी बिल साइज बढ़ेगी। मैं ये मानता हूं कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कस्टमर फ्लो शॉप में कम होवे, तो हमें उनकी बिल साइज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और बिल साइज को ध्यान में रखने के लिए हमें इस तरह से एकदम डेस्परेट होकर कोई काम नहीं करना चाहिए जहां हमारी बिलिंग साइज कम होवे, पॉकेट साइज कम होवे और हम कोई ना हमारे प्रॉफिट को हिट करें। डिस्काउंटिंग करके हमें कैश फ्लो बनाना चाहिए। आई विल से नो, बेटर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ावे, हमारे चैनल पार्टनर का ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे रिटेलर हमें राइट टाइम पेमेंट्स करे, डिस्ट्रीब्यूटर राइट टाइम पेमेंट करे, तो मैन्युफैक्चरिंग राइट टाइम पे हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग राइट टाइम पे होगी जो नया प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेल पे आ जाएगा। सेकंड बचा कि हमारे जो छोटे एमबीओज है और छोटे रिटेलर्स है, उनको भी अपने काम में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। आज कस्टमर हम तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमें हो सकता है कस्टमर तक पहुंचना पड़े, लाइक ई ब्रोशर। आप अपनी इन्वेंटरी को ई ब्रोशर के जरिए, और क्योंकि एक हमारे छोटे एमबीओस का रेपो कस्टमर के साथ अच्छा होता है, उनके डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है, तो हम ई ब्रोशर के थ्रू हम उनके तक पहुंचे और जो भी हम डिस्काउंट है या जो भी ऑफर्स है हम उनके साथ कम्युनिकेट करें। हमें उनके घर डोर टू डोर सर्विस देनी पड़ेगी। जैसे हम ऑनलाइन में कोई परचेस करते हैं हमारे डोर पे आ जाता है, सेम वे हमें छोटे एमबीओस को भी वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें उनके डोर तक जाना पड़ेगा, डोर तक सर्विस देनी पड़ेगी, डोर तक ऑल्ट्रेशन की अगर उनके ऑल्ट्रेशन की जरूरत है तो हमें उनके डोर तक पहुंचना पड़ेगा। इस तरह से अगर अपने बिजनेस में थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है हम सक्सेस हो जाए। लेकिन एक चीज है, हमें अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हमने अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रख लिया तो हम जल्दी बाहर आ जाएंगे इस चीज। Well, there is a saying called tough time calls for smart thinking. Yes. So now, beyond that, what is going to happen once this whole thing eases up? Will we be getting the production that we are thinking about? We are into a situation where production will be a major issue. The labor has migrated to their native places, so there will be a huge shortage of labor. Raw materials will be difficult to procure. Even if you're importing some raw materials, it would be difficult to procure. The supply chain is blocked. For the retailers, if we talk about how should they address this whole issue of managing their inventory? Because the whole point is getting blocked at the retail point. If the retail point gets cleared, the distributor supply chain gets cleared, the company supply chain gets cleared. If we talk about the retailers, what are the issues a retailer should see when he's addressing the inventory issue? First, he should be smart in handling his merchandise. His whole stock system, he should be very smart at managing it. As we call it, there's a system called 80:20 in management. Normally, 20% of your product takes care of 80% of your sales. So if you take care of your 20% of your products, that the stock level is well maintained, so your 80% of the sales is being taken care. Second, if we go for, you should be having a smaller stock cycle. You should be getting into a process of refilling your stock faster. You should be giving smaller orders so that your working capital is not getting blocked. If you're maintaining a stock of, let's say, 10 days, you should come to it as for a 4-5 days cycle. You should be maintaining a smaller stock cycle and you should be checking on your stocks very fast. Then comes demand. What is demand? Demand is a function of two things. A, natural requirement. B, created requirement, that we call desire. How to create a desire? Natural requirement, we all know that you are into apparel, so there will be natural requirement for your product. But when called about desire, how to create that desire? There are two ways of creating a desire. A, through a new product that you give to a market. So if you're talking to a consumer and you would tell them that, see, I've got something new for you, and this is something, a hygienic product, since we are into, everybody is into this mindset of getting some bio products, some organic product.
So this is one way of tackling the issue of creating a demand. Second, I think hygiene would be a very important issue. When a consumer is coming to your place, today the hygiene of your retail counter, of your retail outlet is the best welcome board you can have. So that we should be taking care. There should be proper distancing. There should be mask. There should be sanitizing. All the things should be well taken care of. Everything is fresh inventory, right? It has come into the stores in the month of March. Customer has not even seen it. It is lying covered in plastic bags inside the store, and the stores will open up sometime, hopefully next week onwards. And what the customer is going to see is absolute fresh inventory. The good part about it is the fact that right up till the end of September, the weather is going to be the same. It's going to be hot in India. So what is going to change? Why would you want to liquidate inventory? Secondly, if you want to forecast what is the new supplies that you want, how many of us actually have an experience in terms of what is the demand pattern likely to be ahead? None of us have any experience. We're just all making wild guesses out here, saying that this is going to happen, this is going to happen. There are 5 other curves which are available, which says the virus can come back in our lives. Maybe we'll have more lockdown. So what we have to understand is that there is tremendous uncertainty in the period ahead. Till the time there is certainty in our lives, we can't forecast anything. So what your best bet in is that whatever inventory you are invested in already today, how do you maximize that inventory? Come October, November, you will have festive season. Good part in our lives, there's a delayed festive. Dussehra is on the 25th of October. Diwali is on the 14th of November. With all that delay, you have a late season. And if we are able to solve the virus problem by that time, and the herd immunity is sort of settled into India, I think festivity typically leads to consumption. The biggest challenge on hand right now is forecasting what quantity to buy. And that is unknown. In the inventory business model, what you don't want is you don't want to have an overstocking at all, because what you want to be is cash rich. Your whole idea right now is the fact that, can I start converting my inventory into cash? The more that you do, I would rather not start investing again back in another set of inventory, but maybe pay up my old creditors, etc. And think hard to say the fact that let me secure supplies as and when the supply chain settles. I think the supply chain will take at least about 4 to 8 weeks before we'll see certain amount of consistency. And on the outer limit, even up to about 12 weeks in certain markets, before you can be sure that whatever orders you are placing, they are going to get delivered. Question is very valid. We all bigger chains and bigger large conglomerates or store where we have large stores, we have to plan much in advance. हम लोगों को बहुत जल्दी पहले ही forecast करना पड़ता है next season के लिए, and उसके हिसाब से हमको orders place करने पड़ते हैं 3 से 4 महीना पहले. So similarly, our businesses also have placed orders, but yes, we sensed very early, right in the month of February, that there is something which is going to happen. So we stopped our autumn orders and late summer orders. So we already in with spring summer inventory. Yes, बहुत सारे orders अभी भी on process है. मैंने सबको हम लोगों ने सब vendor base से communicate किया है. We have aligned everyone saying कि यार अभी hold पे डाल दीजिए. वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे. बट जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे ही होल्ड पे डाल दीजिए, जिससे कि अगर कोई हमें फैशन में बदलाव करना है, कुछ उसमें अगर वॉशेस में चेंज करना है, कोई डिजाइनिंग में चेंज करना है, कहीं कटिंग नहीं हुई है तो पैटर्न्स में चेंज करना है, तो वी कैन ऑलवेज डू दैट. सो एट व्हाटएवर स्टेज इट इज लाइंग, वी शुड ट्राई टू होल्ड दैट एंड सीक अ फ्रेशनेस इन दैट इन्वेंटरी so that the newer designs can come in. Yes, we are all full of inventory right in our warehouse, in our stores. So it will always be a big challenge to liquidate that inventory, understand. But and we know seasonality is an important piece. But एक चीज मेरे को अच्छी लग रही है कि इस बार पूरे संसार में लॉकडाउन हुआ है. तो जब पूरे संसार में लॉकडाउन हुआ है तो नया क्रिएशन और नई डिजाइनिंग भी शायद कम आएगी. तो नया क्रिएशन नहीं आएगा, नए कलर्स, नए लॉन्च नहीं आएंगे, तो शायद हमारे को बहुत ज्यादा डिजाइन ओल्ड हो जाने का भी डर नहीं है. As everyone said that we should not at all go for deep discounting. Yes, customer will want value because customer today's age, it is the life where we have to live with less. हमें सबको जिंदा रहना है, कम खा के, कम रह के, कम पहन के एंड कम खर्च करके. तो हम सबको कम इन्वेंट्री में भी जिंदा रहना है, वो ही हमें आदत डालनी पड़ेगी. तो वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर, he will look for deals.
he will want some deals, he will want some offer. उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा तो ही मैं जाऊं, तो कुछ ना कुछ आपको छोटे मोटे प्रलोभन तो देने पड़ेंगे, बट यस डीप डिस्काउंटिंग नहीं देना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. We will have to actually make our products sweat more. Sweat more means हर प्रोडक्ट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हर हमारे रिसोर्सेज को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हमारे हर एसेट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. सो वील हैव टू लुक फॉरवर्ड. ऑल्सो द कस्टमर विल लुक फॉरवर्ड टू दैट कि मेरा एक प्रोडक्ट मैं खरीदूं तो मेरा 2 साल चले, बिकॉज थोड़ा सा कैश पोजीशन आगे के 2 साल के लिए थोड़ा स्ट्रेस रहेगा. तो वी शुड बी माइंडफुल, मैन्युफैक्चरर शुड बी माइंडफुल कि हम थोड़े ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए चले. रिटेलर शुड बी माइंडफुल टू try and give position and maintain supply chain for those products. And it is very important, and for us the entire ecosystem is important. हमने एक ही रूल बनाया है, pay all to some, not some to all. So pay some to all, not all to some, but where every part of our ecosystem is kept alive. सबको बचा के चलो, सबको जिंदा रखो, सबके साथ मिल बांट के खाओ, and maybe take care of everyone, all part of your community. अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कम्युनिटी को, अपने वेंडर बेस को और अपने कस्टमर को. I think everyone has to be taken care of. बेसिकली 2 या 3 चीज बाहर आती है कि नंबर 1, डीप डिस्काउंटिंग is not the answer to our problems. आज जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्काउंटिंग उसमें कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत डीप डिस्काउंटिंग अगर हम करेंगे तो शायद आज की जो लड़ाई है वो शायद हम जीतेंगे कुछ हद तक, लेकिन लॉन्ग रन में जो नुकसान हमारे ब्रांड्स को जो हम करेंगे वो बहुत ज्यादा होगा. मुझे सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंस में बताऊं कि काफी जो सजेशन और सुझाव जो थे वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो बहुत ही करेक्ट, बहुत ही वैलिड और बहुत ही सही सुझाव थे और सॉल्यूशंस थे. आज जो मुझे लगता है कि कई रिटेलर्स और कई मैन्युफैक्चरर्स का इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि कैश आज नहीं है हाथ में. तो आगे फैक्ट्री चलाने के लिए भी अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे फ्रेश प्रोडक्शन करने के लिए भी अगर मुझे फाइनेंस चाहिए, तो वो मैं कहाँ से लाऊं जब तक मेरे पास ये इन्वेंट्री है. तो मेरा यही एक सुझाव रहेगा कि हो सकता है कुछ लेवल के डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़े. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो ई कॉमर्स की चैनल है, जो आज भी आप सबसे बड़े से बड़े ब्रांड्स ले लो, वो भी ई कॉमर्स में डिस्काउंट पे माल काफी बेचते हैं. तो अगर आपका ब्रांड डिस्काउंट पे ई कॉमर्स में बिकेगा तो शायद जो लॉन्ग टर्म में जो डैमेज हम लोग सोचते हैं वो शायद नहीं होगा. क्योंकि सब कस्टमर भी आप जानते हैं कि हाँ भाई ई कॉमर्स में तो पुराना माल है, डिस्काउंट में माल बेचता है. तो अपनी जो फिजिकल दुकानें हैं उसमें आप उतना डिस्काउंट नहीं दो और ई कॉमर्स में दो. वो एक तरीका है. समर SS20 मेरे हिसाब से SS20 को डिस्काउंट करने का कोई मतलब नहीं है और आपको जितना हो सके आपके पास होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 महीने भी जो जैसे राकेश जी ने बताया कि आज एक्चुअली विंटर तो इंडिया में सिर्फ नॉर्थ में आती है और सिर्फ दिसंबर जनवरी में आती है. तो राइट अप टू एंड ऑफ नवंबर हमारे पास टाइम है कि आप SS20 का जो प्रोडक्शन जो हमने किया है वो आप बेच सकते हैं. मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके जो प्राइसेस जो है वो आप बहुत ही क्लोजली स्टडी कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हेमंत भाई ने ये पॉइंट रखा था कि हम लोग जानते हैं, एश्यूम करते हैं कि हमारा 30-35% माल EOSS और डिस्काउंटिंग में बिकेगा. तो वो हिसाब से हम अपने प्राइसेस, जो ओरिजिनल प्राइसेस जो है, MRP जो है, वो हम लोग एड ऑन करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं. तो अगर हम ये अगर हम नहीं करें और सही प्राइस पहले से ही सही प्राइस में रखें, तो हो सकता है
कि हमें डिस्काउंट भी नहीं देना पड़े, कस्टमर को ये भी लगेगा कि माल अच्छा है, प्राइस अच्छी है, तो हमको ये ब्रांड खरीदना चाहिए। और एक बात तो मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट ने ये कहा कि आप सिर्फ आज के लिए मत सोचो, आप ये धंधे में और 10, 20, 25 साल रहेंगे, आगे की सोचो। आपकी ब्रांड की जो पोजीशनिंग है, ब्रांड की जो वैल्यू है, वो पकड़ के रखिए और उस बेसिस पे आप आगे बढ़िए। थोड़ा सा पेन जरूर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको खींचतान भी करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये एक और सुझाव दूंगा कि आपके जो बायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ भी आप बहुत ही रीजनेबल अगर डीलिंग करें तो वो भी आपके साथ रीजनेबल डीलिंग करेगा। हम लोग CMS के थ्रू ये एक पॉइंट बार बार लोगों को, हमारे मेंबर्स को, हमारे रिटेलर्स को हम बोलते रहते हैं कि आज का समय नहीं है कि जो आप, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं स्ट्रॉन्गर हूं तुम वीकर हो, ये सब चीज में जाने का टाइम नहीं है। एसोसिएशन का रोल 3 या 4 चीज में हुआ है। नंबर 1 के जो आपके जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे छोटे मेंबर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया है, हो सकता है कि उनको बहुत जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एसोसिएशन क्या कर रही है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या निकल रही है। तो आपको आपके मेंबर्स के साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए, जो CMI करती है। दूसरा जो है, जो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन का रोल होना चाहिए कि जो छोटे जो कस्टमर्स जो हैं, उनको भी कैसे आगे जाके कैसे वो लोग बड़े कैसे हो सकते हैं, और आगे जाके कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, ये सारे चीज भी एक लर्निंग प्रोसेस, एक ट्रेनिंग प्रोसेस का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और जो हम CMI में कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक मेंबर्स को तैयार करना कि अब समय आया है चेंज का, हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी, हमारी बिजनेस मॉडल्स चेंज करने पड़ेंगे, हमारे जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हम लोग ने जो हमारे जो जॉब वर्कर्स जो हैं, उनके जो कारीगर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो आज बॉम्बे में फंसे हुए हैं, उनके गांव अप कंट्री, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार जो भी है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और क्योंकि जॉब वर्कर्स के कारीगर हैं, जॉब वर्कर्स के पास भी उतना फंड्स नहीं है, तो हम उन लोगों को 1-1 महीने का पूरा फूड का राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कि आज जो सारे जो पैनलिस्ट जो हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हम लोगों ने ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने रखा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि रिटेलर्स को भी यही एक पार्टनरशिप का अप्रोच लेना पड़ेगा, जो जैसे मेरे ख्याल से ललित जी ने बताया, जो पे सम टू ऑल, बट आई एम होपिंग कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ललित जी, और एक बार सम टू ऑल हुआ, उसके बाद ऑल टू ऑल पेमेंट भी रिटेलर्स करेंगे। मैं जानता हूं, हम लोग सब जानते हैं कि रिटेलर्स भी उतने ही प्रॉब्लम्स में हैं, जैसे मॉल ओनर्स भी प्रॉब्लम्स में हैं, हमारे फैब्रिक सप्लायर्स भी प्रॉब्लम में हैं। तो हर एक को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और मैं मैन्युफैक्चरर्स को भी मैं ये एक विनती करूंगा कि जितना ही फेयरनेस, जितना ही अच्छा बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रिटेलर्स से, हमें भी उतना ही फेयर बिहेवियर हमारे फैब्रिक सप्लायर्स और ट्रिमिंग सप्लायर्स के साथ करना चाहिए।
राहुल भाई आपने बहुत अच्छा बोला। मैं ये जानना चाहूंगा कि CMI प्लेटफॉर्म के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली मिड साइज मैन्युफैक्चरर्स जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके एंड फर्दर रिटेलर के साथ मिलके कुछ चेन डेवलप करके, अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं भी होता तो कम से कम एक आइडियाज शेयर हो जाए, या कम से कम एक ज्ञान शेयर हो जाए, या कम से कम एक पार्टनरशिप वाला प्रोसेस समझ आए। तो आज की डेट में, दो वी हैव सम पैनलिस्ट फ्रॉम द रिटेल आल्सो, तो आज की डेट में रिटेलर्स, जो एक छोटा रिटेलर है, वो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज वेरी लोकलाइज्ड है, उसके अपने फैमिली के रिसोर्सेज हैं, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिटेलर जो आज हमारा इस टाइप का छोटा रिटेलर है, जो 70% इंडस्ट्री का बैकबोन है, उसको हमारी चेन क्या सपोर्ट कर सकती है? देखिए संजय, हमारी इंडस्ट्री की एक कमजोरी ये है कि 70% या 80% MSME में है, और वो फैब्रिक सप्लायर भी उसी कैटेगरी में है, मैन्युफैक्चरर भी उसी कैटेगरी में है, और रिटेलर भी उसी कैटेगरी में है। तो मैं तो यही कहूंगा, एक ही अगर मंत्र है तो ये एक्सेप्ट करना कि सिर्फ मैं तकलीफ में नहीं हूँ, सारे लोग तकलीफ में हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स भी तकलीफ में हैं, हम भी तकलीफ में हैं, हमारे रिटेलर्स कस्टमर्स भी तकलीफ में हैं, और हमारे सप्लायर्स भी तकलीफ में हैं। तो जैसे कि ललित जी ने भी ये कहा, राकेश जी ने भी कहा कि मिलजुल के ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज। तो आई थिंक हम सबको मिलके 3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, करेज, होप एंड डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज से इस चीज को हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इसको अगर हमारी बॉटम लाइन खराब भी करें अगर, तो पता नहीं कि इतनी डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, विच एवरीबडी, अभी आप सब लोगों ने ये एक्सेप्ट ही किया कि कोई जरूरी नहीं कि इतनी डिमांड आएगी, बिकॉज हमको डिस्टेंसिंग रखना एंड ऑल दिस थिंग। इससे अच्छा है अपनी बॉटम लाइन खराब करें, इससे अच्छा हम लोग सब बैठ के बात करें। फैब्रिक वाले, फैब्रिक है, वेंडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, सब लोग थोड़ा थोड़ा भार एक दूसरे का शेयर करें। एक दूसरे का शेयर करके हम सब लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम उस चीज को आगे लेके जाए, उसी से हम लोग ओवरकम हो सकते हैं। एंड रिगार्डिंग बैंक फाइनेंस की, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इतना ही फाइनेंस लीजिएगा कि आप कहीं और डेट में ना चले जाए। हमें अब इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज इनसाइड आवर टीम काम करने की ज्यादा जरूरत है, रादर फोकस ऑन आउटसाइड। हम ये सोचते, हम कभी ये टाइम निकाल लें कि अगर हमारे पास अंदर स्टॉक कितना है अभी और किस कैटेगरी का है, तो डीप डिस्काउंटिंग में ऑब्वियसली हम नहीं हैं, बट ये भी जरूरी है कि अगर कैटेगरी वाइज स्टॉक का पूरा, अगर हमारे पास एक चिट्ठा हो पूरा, तो उसमें हम जो लिक्विडेशन वाले स्टॉक्स हैं, जो बहुत पुराने ओल्ड स्टॉक्स हैं, उसको डीप डिस्काउंट करें रादर देन अपनी फ्रेश कलेक्शंस को। तो फ्रेश कलेक्शन अपने अगले फेस्टिव सीजन के लिए या वेडिंग सीजन के लिए या नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं, बजाय कि अभी जो वो स्टॉक्स हैं जो लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं और टाइमली इकट्ठे हुए हैं, उनको आगे थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके निकाल दें। दूसरा सजेशन, जैसे बेस्ड इन लुधियाना, नॉर्थ इंडिया, हमारे पास विंटर और समर दोनों सीजन है। तो अभी जैसे समर का सीजन बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और मार्केट में कैश क्रंच की कमी होने के कारण अगला विंटर सीजन की प्रेडिक्शन ये है कि शायद विंटर सीजन तक अगर ये बीमारी ठीक हो जाए तो आगे काफी उम्मीद है कि ये मार्केट फिर से दोबारा दशहरा दिवाली के बाद खुलने की उम्मीद अच्छी लग रही है। नहीं देना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे जितनी जल्दी हम इन्वेंट्री अपनी क्लियर करेंगे उतनी ही आगे कंजम्पशन बढ़ेगी, इतना होगा। सो नो hard rules to apply, but yes, discounts, if you get more, you don't make money out of it. Dealer will expect that only the stock which is sanitized have some assurance or stamp or something like this, that this stock is sanitized, doesn't carry any COVID virus along with this, and it is coming from a factory which is COVID sanitized one. Special packaging may be required, wherein something like this, which happens, which gives the dealer a confidence that this product is clean.
in regard to payment, it will be difficult from the dealer to get the payment, because right now the guy, we just tell the guy, boss, just travel for 3 hours, go and get the payment. It will be difficult. Collection would be difficult. मैं बैंगलोर अपरेल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ. आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ बामा. तो हमने सारे मैन्युफैक्चरर को शायद सेलिंग पॉइंट की नॉलेज नहीं दी, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू वेजेस. थोड़ी पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट किया जाए जिससे थोड़ा मैन्युफैक्चरर डेट में ना जाए. यहाँ पे कर्नाटका में परमानेंट एक मंथली रेंटल्स होते हैं HT पावर के ऊपर, जो निकाली जाए. एंड वी आर अप्रोचिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री टू गिव लो कॉस्ट इंटरेस्ट विथ रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड का जैसे ऐसे ही. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द कॉर्पोरेट हाउसेस कि एटलीस्ट 1 ईयर के लिए बांग्लादेश से जैसे कंट्री से इंपोर्ट ना करें एंड सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर, जिससे एक मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी बना रहे एंड यू कैन सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर. चूंकि कला एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और यहाँ जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो मिड स्केल के ज्यादा है, और चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि मिड स्केल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको हर तरह से प्रॉब्लम होती है. उनको बैंक्स भी सपोर्ट नहीं करती है, उनको कस्टमर से भी सपोर्ट मिलने में तकलीफ होती है. तो इस चीज के लिए हमारे रिटेलर को, हमारे मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले अपने इन्वेंटरी पे काबू करना होगा. जैसे आज रॉ मटेरियल ही है, पहले आज से 10 साल पहले रॉ मटेरियल क्या होता था, एक प्लास्टिक पैकेट में डाल के लोग माल भेज देते थे. बट आजकल हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग होती है, तो उसके लिए उनकी इन्वेंटरी बढ़ जाती है. तो उस सूरत में उनको वो देखना पड़ेगा. दूसरी चीज ये है कि इन्वेंट्री में उनको जो स्टॉक इन्वेंट्री है वो आज अभी वो घर पे बैठे हैं, तो मिड साइज रिटेल जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये मालूम होता है कि वो क्या बना रहा है, उसका क्या माल बिक रहा है. इस स्थिति में उसको आज घर पे बैठ के ये आकलन करना चाहिए कि मेरा कौन सा माल अच्छा बिक रहा है, कौन सा स्लो बिक रहा है और कौन सा बहुत कम बिक रहा है. तो उस तरह का माल वो नहीं बनाए. तो पेमेंट्स, अभी रिटेलर से पेमेंट जो लेनी है मस्ट भी रिटेलर जो है वो आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि जिनके साथ आप रेगुलर धंधा करते हैं वो जरूर सहयोग करेंगे. मेरा इसमें एक बोलना ये है कि हमारी सरकार को भी इस चीज में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो मिड साइज मैन्युफैक्चरर है उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर होती है, और हम लोग सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं. हम भी कर रहे हैं, CMI भी कर रही है, बैंगलोर वाले भी कर रहे हैं, गुजरात वाले भी कर रहे हैं. सब अलग अलग अपना अपना मेमोरेंडम भेज रहे हैं, अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं. बट मैं राहुल मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ऑल इंडिया एसोसिएशन क्रिएट करें और उसके मार्फत वो सरकार से बात करें, जिससे कि हमारी आवाज थोड़ी बुलंद हो. और छोटे जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे अभी ललित जी ने कहा कि बैंकों के पास बहुत अट्रैक्टिव डील्स है, बट आप जब प्राइवेट बैंकों के पास जाते हैं तो वो आपको कोई भी डील नहीं देती है. सरकारी बैंकों के पास कुछ डील है, वो देती भी है, दे भी रही है, बट प्राइवेट बैंक्स नहीं देती है. और हर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक से काम नहीं करता है. कुछ मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके प्राइवेट बैंक से भी काम करते हैं. तो कोविड-19 जो कि दुनिया भर में फैली हुई पहली बार ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, और ये अब तक के हमारे जीवन काल में ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं है. हम सभी लोगों ने, सभी एसोसिएशनों ने मिलके बहुत सारे रिक्वेस्ट सरकार को भी दिए हैं और सरकार से आशाएं भी लगाए रखे हैं, मगर व्यापारियों को खुद मिलकर ही कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमारी है वो हमें पता है क्या है, और उसमें से निकलने के रास्ते भी हमें निकालने पड़ेंगे. जैसे कि सबसे मेन इश्यू आपका आज का सब्जेक्ट है कैश फ्लो का. तो कैश फ्लो के लिए सभी को मिलके, देखिए हमारे पास स्टॉक बहुत कुछ है, एक सीजन पहले का भी है, नया भी स्टॉक आया है, बहुत कुछ चीजें हैं. एक माहौल क्रिएट करना होगा जिसमें हम लोग अपना जो पुराना माल है, पुराना स्टॉक्स है, उसको अगर हम सेल आउट कर भी पाए, ऑफर देके, हम ऐसा नहीं कह रहे कि इसमें कहीं हमारी ज्यादा नुकसान करना है, अगर हम पुराने अपने स्टॉक्स को भी क्लियर कर पाए, इन्वेंट्री को क्लियर कर पाए, तो इससे बेटर होगा कि हमारे पास कैश फ्लो रहेगा. क्योंकि चीजें सप्लाई चेन जो अब तक हमारे इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने आपको अब तक सपोर्ट किया है, जिनसे आपने आज तक फैब्रिक लिया है, जिनसे आपने गारमेंट लिया है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो पूरा है, ये नेटवर्क में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए. आज तकलीफ है, हम समझ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी है,
मगर जो भरोसा अब तक रखा हुआ है लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, वो भरोसा कायम रहना चाहिए। एसोसिएशन लेवल की बात करें तो एसोसिएशन के लीडर्स जो भी है वो एक मेन की पर्सन्स होते हैं। उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मेंबर्स को, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है या डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके जो ग्रुप्स है, जो भी लोग हैं, उनको मोटिवेट करें। ये कहना चाहूंगा टू एंटायर पैनलिस्ट एंड कीनोट स्पीकर्स एंड टू द एंटायर इंडस्ट्री, रमेश जी को इजीली द ग्रेट विजनरी ऑफ इस इंडस्ट्री का बोला जा सकता है। मैंने रमेश जी के पास काम किया है और फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने जो काम किया है वो सबके सामने है। सियाराम आज वन ऑफ द बिगेस्ट और आई शुड से द बिगेस्ट ब्रांड है। ये इनके विजन के हिसाब से है। इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्लसेस एंड माइनसेस देखे हैं और बहुत पेशेंस से काम किया है। आज उनका एक्सपीरियंस सिर्फ फैब्रिक तक लिमिटेड नहीं है, फैब्रिक के ट्रेड के अंदर तो उनको अल्टीमेट वर्ड गिना जाता है। उनका आज गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। उन्होंने ग्लोबल राइट्स कादिनी ब्रांड के खरीदे हैं, इटालियन ब्रांड है, ग्लोबल राइट्स उनके पास हैं। उन्होंने ऑक्सेनबर्ग जो ब्रांड है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मास ब्रांड इन द कंट्री। दे हैव ब्रांड लाइक MSD और उनका अपना रिसेंटली उन्होंने मोजो करके ब्रांड लॉन्च किया है। तो मैं ये बेट कर सकता हूं कि इनसे जो हमने गुरु मंत्रा की रिक्वेस्ट की है, इनसे 5 मिनट जो हमें मिलेंगे वो सारी चीज का निष्कर्ष इन्वेंट्री के हिसाब से शायद एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा। थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूँ पूरी सप्लाई चेन के ऊपर। हमारा जो सप्लाई चेन का पिरामिड है, आज हमारे जो विजिटर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे रिटेलर्स और वो लोग ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनकी बात की जाए। बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो लोग हैं, लास्ट 20 दिन में हम लोगों ने कम से कम 10 मीटिंग्स हमारे छोटे रिटेलर्स, मीडियम रिटेलर्स से की है, कम से कम 7,000-8,000 लोगों से। तो एक तो मैं एडमिट करता हूँ, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है पूरी दुनिया में, पूरे देश में और हमारी हर कंपनी के लिए। तो हमको सबको डेफिनेटली एक बहुत कठिन पीरियड से गुजरना होगा और सबको नुकसान लगने वाला है। कितना भी कुछ कर लें, हम इस नुकसान से हम बच नहीं सकते। हमको अभी जरूरत है अपना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करके नीचे से ऊपर तक सब एक दूसरे का कैसे हाथ दें। और अपनी इस पिरामिड में ज्यादा दिक्कत हम लोगों के ऊपर के प्लेयर को होने वाली है, मैन्युफैक्चरर को होने वाली है, ब्रांड्स को होने वाली है, जो खर्चे ज्यादा लेके बैठे हैं उनको होने वाली है। और इसीलिए हमने ज्यादा बातें आज के जो वेबिनार है अपना पिरामिड के ऊपर के लोगों की बात की थोड़ा, क्योंकि हम बेस जो है वो अपने पिरामिड के नीचे लोगों पर है। अगर सारे रिटेलर्स हमारे अच्छा करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जल्दी डेफिनेटली उभर करके आएगी। क्योंकि ये इन्वेंट्री उड़ाओ वाला काम तो हम कर ही रहे हैं कई सालों से, तो लेकिन कैश तो उससे बन नहीं रहा है। तो अभी एक मौका मिला है हमको, ये जो अपनी आफत आई है। देखिए, मेरा एक मानना है कि हर एक कोई अगर किसी भी तरह की तबाही आती है तो उसके बाद एक बूम जरूर आता है। आज हमको मौका मिला है ये 4 महीने का, जब हमको अपने आप को पूरा मनन करें, हमारे सिस्टम को मनन करें। और मेरा एक ऐसा मानना है कि हम सब मिल करके ये 4 महीना जो ब्रेक एक इनडायरेक्टली अपने आप मिल गया है, तो इस ब्रेक का फायदा उठावे और आने वाले समय में हमारे सिस्टम को ठीक करें। लेकिन जब ये छोटे रिटेलर से मिले तो सब बोले साहब आप हम तो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको तकलीफ होगी सबसे ज्यादा, लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि उनको अगर हम संभालेंगे तो उसमें राहुल भाई ने भी एक अच्छी बात की। ऐसा हमारे कम से कम भी 25-30 रिटेलरों ने कहा कि हमारा इस वक्त दायित्व बनता है कि हम हमारे सप्लायरों को संभालें और सप्लायर उसके बड़े सप्लायरों को संभालें। तो एक दूसरे से मिलकर के हाथ बटा करके अगर हम काम करेंगे, हमारे ये छोटे रिटेलर भाइयों का ध्यान रखेंगे, उनके लिए ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे रूप से अपनी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री उभर करके आएगी। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करके मुझे ऐसा लगता है कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी सप्लाई चेन के लिए। तो और मेरी कई रिटेलरों से बात होती है, वो भी नहीं चाहते हैं कि आप हमको डिस्काउंट के लिए मजबूर करो, हम डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप हमको मजबूर करते हैं। तो वेरी प्रैक्टिकली हमको ये सोचना है कि ये ब्रेक को हम फ्यूचर बनाने में और फ्यूचर को ठीक करने में लें। और हमारी तकलीफ सबकी है, जो आप लोगों ने बताया, हर कंपनी के पास में पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और हमारे काफी आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो बहुत पेशेंस से हमको इस चीज को डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सप्लाई चेन में बहुत इनएफिशिएंसी है। हर जगह पे माल इतना ज्यादा पड़ा रहता है, पेमेंट्स लेट आते हैं,
तो अगर हम लोग अपने इस वक्त पुराने स्टॉक को, जो ये नया माल बना है वो तो है ही है, लेकिन हमारी रिटेल दुकानों में पुराने माल बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, 1-1 साल 6-6 महीना 8-8 महीना पुराने माल पड़े रहते हैं। तो ये एक मौका है जब हम अपने पुराने माल को क्लीन कर देवें, साफ कर देवें, और ये 4-5-6 महीने का हमको जो ब्रेक मिला है, उसके बाद एक फ्रेश जिंदगी, एक फ्रेश दुनिया हमारे लिए जरूर आने वाली है। हमारे छोटे रिटेलर भाइयों को एक ही मेरी सलाह है कि जब दुकान खुलेगी तो सबसे पहले आप अपने दुकान को कोरोना फ्री कर लीजिए। अपने जो छोटे कस्टमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ में थोड़ा और रिश्ता बढ़ाइए। आप लोगों के रिश्ते ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसीलिए आप लोग छोटी छोटी जगह पे इतना सक्सेसफुली, भले छोटा ही करते हो, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में अपना रिश्ता और बढ़ाइए, और अपने सप्लायरों के साथ में भी रिश्ता बढ़ाइए। तो हम साथ मिलकर के अगर कदम से कदम उठाएंगे, बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो पीरियड आया है, एक भयंकर महामारी जैसी आई है, और अपने इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड आया है। डेफिनेटली एक इसमें से अच्छी चीज़ें उभर करके आएगी लॉन्ग टर्म में। 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, बट 6 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद में कई अच्छी बातें इसमें से निकल करके आ सकती है। और हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री जो 2-3 साल से तकलीफ में चल रही है, हम सब मिल करके जिस तरह से आज हम लोगों ने बात की, कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच अगर बनाएं, कुछ भी एक सिस्टम्स ऐसे बनाएं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन पीरियड है। बहुत से क्वेश्चंस रजिस्ट्रेशन के टाइम आए हैं, और बहुत से क्वेश्चन अभी चैट पर चल रहे हैं। सलील चावला ने बहुत वर्क किया इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द क्वेश्चन व्हिच आई हैव picked is, no wonder this goes to Rahul bhai, the oldest, the most experienced and the visionary. I would say he is the one who wears 2 dons very successfully. One, entrepreneur. Second is head of India's largest and biggest voice of the industry. He is chief mentor, CMAI. The question goes like this, Rahul bhai. It has 2 parts. Question 1 is that in this given scenario, when there is so much uncertainty, everybody has been saying that look for differentiation, which you also said in your CMA, this also. What are the low-hanging fruits in terms of PP or XYZ, whatever is there, based on your experience, you have been in touch with the entire industry? See, I personally believe that we have no option but to sort of try and work together between the government, between the manufacturers, the retailers, distributors, everybody. Like Praveen ji, I think, mentioned, CMAI has also made lots of representations to the government. But frankly speaking, the response has not been all that encouraging. They are hearing us, they are listening to us, they are sympathizing with us, but unfortunately, nothing has happened at the ground level. Second question is to Rakesh Biyani ji. Many people have asked, they have said that in recent webinars, commonly used words like reset and reshape the fashion, like a cliche are being used. Can you give some color to it? That what exactly caused this? Because they are saying after the exit, maybe first is survival staggered, then revival, and then comes, rival. So, we've got to keep our emotional balance. We've got to keep our collaboration going. And I think we've got to go back to our principles of our values and how do we help each other in these tough times. I think recovery will definitely happen. India as a country, we've seen we've really dealt with it so well. And I think we really value relationships, whether it's with the consumer, whether it's with our employees, or whether it's with our partners. And I think we will come out of this much sooner than many other countries could. सारी थिंकिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। आज तक हम जो भी सोचते थे कि ये सही है और वो गलत है, वो हमें रिव्यू करना पड़ेगा। अभी तक हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज हमें सक्सेस लाई थी, वो हमें वापस रीलुक करना पड़ेगा। और एक, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, एज इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस टुडे,
और ये धंधे में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, वो एक कंप्लीटली नए एंगल से और फ्रेश एंगल से अगर हम देखें तो ही ये सर्वाइव हम लोग होंगे। अगर जो हम करते आए हैं वो ही अगर हम करते रहें और कंटिन्यू करें तो मुझे डर लग रहा है कि काफी लोग परेशान हो जाएंगे, काफी लोग को नुकसान होगा। Next question is to Hemant Bhai Killer. Sir, we have a ton of merchandise that we need to get rid of. What is the scenario projection, sales forecast, deep discounting, channel clearing? If it is channel clearing, which channel will you advise us? And what is the overall package will you like to? Because you केवल किरण इज कंसर्न, हम लोग बहुत टाइट इन्वेंट्री पे काम करते हैं, बहुत माइक्रो लेवल काम करते हैं इन्वेंट्री को लेके। तो मेरे पास ऐसी कोई बहुत ज्यादा है ना इन्वेंट्री है नहीं कि मुझे उसको बहुत डेस्परेटली उसको बेचना पड़े। बट यस, जो भी ब्रांड या किसी के पास भी अगर इन्वेंट्री बची है तो उनको तीनों फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड अपने अगर उनके खुद के ईबीओज है। लेकिन वन टाइम वन थ्योरी, वन जैसा मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल, एक तरीके, एक ही टाइम डिस्काउंट करो, बट हर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको जरूरत है कि उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री या डेड स्टॉक बहुत ज्यादा बचा है तो क्लियर करना, लेकिन फिर एक ही तीनों फॉर्मेट यूज करके एक साथ में एक ही बार जहर का घूंट पी लेना चाहिए। The best part. I love to invite people. I love to thank all of you. Thank you so much for being a part of this. हम चाहेंगे कि अगर अगले हम जब करेंगे इस तरह का वेबिनार, आप इसी तरह हमारे साथ सपोर्ट में रहें। And it was very insightful, very intriguing. Thank you one and all. Thank you everybody for all your contributions. Thank you. Good night. Stay safe. Stay good. Thank you. Thanks a lot.